Hello students, today we are going to read the chapter Discovering Tut. The saga continues, written by A.R. Williams. Discovering Tut. This chapter describes the boy king Tut. He was the last heir of a powerful family that ruled Egypt for centuries. The lesson also describes how CT scan of Tut's mummy revealed interesting but startling facts about life. Let's read the chapter. He was just a teenager when he died. Narrator described that when the king Tut died, he was a teenager, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. Last heir here, the person who will be the next king ऑफ ए पावरफुल फैमिली, वो एक बहुत पावरफुल फैमिली का अंतिम उत्तराधिकारी था. हु रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, जिसने सेंचुरीज से अनेक शताब्दियों से इजिप्ट पर शासन किया. ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन. हेयर इवेंचुअली मीन्स फाइनली. उसे पूरी कवर कर दिया गया, सोने से पूरी तरीके से कवर कर दिया गया व्हेन ही वाज डाइड एंड इवेंचुअली फाइनली फॉरगॉटन, उसे भूल गए. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, जब से 1922 में उसके टॉम की डिस्कवरी हुई, खोज हुई, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम. स्पेकुलेटेड हेयर गेस, इमेजिन करना, अनुमान लगाना. उन्होंने जब 1922 में उसके टॉम की डिस्कवरी हुई, तब मॉडर्न वर्ल्ड ने ये इमेजिन किया उसके साथ क्या हुआ होगा. विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. एक्सट्रीम सबसे ज़्यादा मीन्स मोस्ट, और सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी थी? शायद उनका मर्डर किया गया था. नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द लास्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, और लगभग अब 80 ईयर्स में सबसे पहली बार उसके टॉम को बाहर निकाला गया. एंड टुट हैज़ अंडरगोन अ CT स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ. और अब उसकी लाइफ से रिलेटेड और उसकी डेथ से रिलेटेड नए फैक्ट सामने आने थे. And provides precise data for an accurate forensic reconstructions of the boy's Farhan. Here, provides means gives, precise means exact data, facts and figures. Forensic, examining dead bodies to find out the cause of death. अब उस फरहा को मीन्स किंग टट के बारे में एग्जामिन, उसकी मौत कैसे हुई उसको पता लगाने के लिए और उसके बाद उसका रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए, दोबारा से उसके को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए एक प्रिसाइज डाटा, एक एक्यूरेट डाटा CT स्कैन के द्वारा प्रोवाइड करवाना था. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the King. Here, angry means violent. Stirred up, grow, rise to. ऊपर की ओर उसको खड़ा कर देना. Ghostly, we know about like ghost. Dust devils, fearful devil-like shape. Ancient, very old. Cemetery, the place where dead bodies are buried. जब किंग टट को उसकी रेस्टिंग प्लेस से बाहर निकाला गया, एंड द रेस्टिंग प्लेस वॉज सिचुएटेड इन cemetery place, Egyptian, ancient Egyptian cemetery place, which is known as the Valley of the King. जिसे हम वैली ऑफ द किंग कहते हैं. जैसे ही किंग टट की बॉडी को उसके रेस्टिंग प्लेस से बाहर निकाला गया, तभी तेज़
वायलेंट अगर हम कहें, विंड लाइक अ घोस्ट, चलना स्टार्ट हो गई। Dark bellied clouds had scudded across the deserted sky all day and now were veiling the stars in cascade grey. Dark bellied means dark and bulging, mean to say गहरे काले बादल फैल गए। Scudded across, the clouds moved quickly across the sky. Veiling means to say to cover. Cascade grey, grey colored box means full of stars. Dark bellied clouds had scudded across the deserted sky all day and now were veiling the stars in cascade grey. When the King Tut body was taken out from its resting place, suddenly the violent wind started to blow and dark clouds covered the whole sky day and night. At night, they covered all the cascades of grey means all the stars. चारों तरफ आंधी ही आंधी फैल गई और काले काले बादल छा गए। It was 6 p.m. on January 5th, 2005. अब आज day, it was the time of January 5th, 2005 and the timings was 6 p.m. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. Glided means moved. Scanner, examiner machine, we will say. To probe means to examine. Lingering, that is left for a long time, जिसे काफ़ी लंबे टाइम से जो रह गया था. Mysterious secrets. वर्ल्ड की फर्स्ट मम्मी का सीटी स्कैन होना था पहली बार, ये एग्जामिन करने के लिए जो मिस्ट्रीज लिटिल यंग रूलर के बारे में अभी तक नहीं पता थे, हाउ ही डाइड एंड व्हेन डिड ही डाई, उन सभी मिस्टीरियस मेडिकल मिस्टीरियस को फाइंड आउट करने के लिए पहली बार सीटी स्कैन किया गया सिर से लेकर पैर तक. Who died more than 3,000 years ago, जो किंग टट अब से पहले 3,000 years पहले मर गया था. All afternoon, the usual lines of tourists from around the world had descended into crammed. पूरी दोपहर यूजुअल लाइन्स ऑफ टूरिस्ट की एक लंबी सी लाइन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड जो पूरे संसार से आए थे, हैड डिसेंडेड. हेयर डिसेंडेड मीन्स टू कम, क्रैम्ड नैरो. वो टूरिस्ट लगातार रॉक कट टोम सन 26 फीट अंडरगोन टू पे देयर रिस्पेक्ट्स. पूरी दोपहर जो टूरिस्ट संसार के दूसरे भागों से भी वहाँ पे आए थे, उस किंग टट को देखने के लिए जो एक टोम के अंदर 26 फीट अंडरग्राउंड एक अंडरग्राउंड एक टोम बनाया गया था जिसमें उस किंग टट को रखा गया था, वहाँ पे लगातार उसको देखने के लिए विजिट कर रहे थे. दे वांट टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, दे वर देयर टू पे देयर रिस्पेक्ट्स. They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face. They gazed means they were seeing, keen observing. वो बहुत ज़्यादा कीन ऑब्जर्वर कर रहे थे. एट द मोरल्स पिक्चर्स पर, ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर, जहाँ पर उसको दफनाया गया था उसके ग्रेव रूम में. ब्यूरियल चैम्बर मीन्स हियर ग्रेव रूम में, जहाँ पर उसको दफनाया गया था उसकी दीवारों पर कुछ टूरिस्ट पिक्चर्स लगी हुई पिक्चर्स को देख रहे थे. एंड पियर्ड एट टट्स गिल्डेड फेस, और लगातार टट का जो चमकता हुआ चेहरा था विच वॉज कवर्ड विद गोल्ड, उसको देख रहे थे. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, जो उसकी ममी के साइज का कॉफिन था उसके लिड की सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर अट्रैक्टिव फीचर कहेंगे वो था. सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर,
कुछ विजिटर्स वहाँ पर विस्परिंग कर रहे थे। जो वहाँ पर गाइड बुक्स रखी गई थी उनको पढ़कर आपस में कुछ कानाफूसी कर रहे थे उसके बारे में। देवर कन्वर्सिंग, सम वर स्टैंडिंग साइलेंटली, कुछ लोग वहाँ पे साइलेंटली खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन इज लेट टीज, शायद वो पॉन्डरिंग होता है सोच विचार करना, मीन्स टू थिंक अबाउट दैट डीपली, किसी भी बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से गहराई से सोचना। कुछ लोग बहुत गहराई से टट की अनटाइमली डेथ जो हुई थी उसकी टीनेजर एज में उस टाइम के बारे में सोच रहे थे। और वंडरिंग विद ए सीवियर इफ द फराह कर्स डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वॉज रियली ट्रू, और कुछ लोग इस बारे में सोच रहे थे कि कहीं फराह की जो डेथ हुई थी और उसका जो मिसफॉर्चून है उसका एक कर्ज था, एक अभिशाप था, क्या वो वास्तव में सच था। और ये कहा जाता है कि जो उसको डिस्टर्ब करता है उसके ऊपर वो कर्ज, वो श्राप आ जाता है, इसीलिए लोग उसके बारे में सोच सोच कर देवर थ्रेटिंग, वो डर रहे थे। द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वट कार्टर डिड इन 1920, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. Zahi Hawass, who was the Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, कहते हैं मम्मी को बहुत बुरी कंडीशन में छोड़ा गया। What did in the 1920 बाय कार्टर, कार्टर ने जो 1920 में उन्होंने उसकी टट की टॉम को डिस्कवर किया था, तो उन्होंने किंग टट की मम्मी को बहुत बुरी कंडीशन में छोड़ दिया, ऐसा जही हवास का मानना था। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, जब वो पहली बार किंग टट की मम्मी को देखने के लिए नीचे की ओर झुकते हैं। कार्टर हावर्ड कार्टर, दैट इट वॉज द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट, कार्टर हावर्ड कार्टर वॉज द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching, futile years useless, जिन्होंने 1922 में एक लंबे टाइम पीरियड से सर्च आउट करने के बाद किंग टट की टॉम को डिस्कवर किया था। इट्स कंटेंट्स दाउ हेस्टिली ransacked in antiquity, here contents means things, hastily in a hurry, ransacked means looted। यहाँ पे ये कहा जाता है कि भी इसके जो अंदर की जो थिंग्स रखी गई थी उन्हें माना कि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री जल्दबाजी में पुराने टाइम में लूट लिया गया था, बट सरप्राइजिंगली दे वर कंप्लीट। लेकिन अब एक आश्चर्य था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी टट की बॉडी के साथ जो चीज़ें रखी गई थी उन्हें बहुत पुराने टाइम में पहले से ही लूट लिया गया था, परंतु अब देख कर लगता है कि वो सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बीन बिकम पार्ट ऑफ द फराज लीजेंड, हेयर लीजेंड्स मीन्स स्टोरी दैट इज़ हैंडेड फ्रॉम जनरेशन्स, जो काफ़ी लंबे टाइम से जनरेशन्स के टाइम से चलती हैं। They remain the richest royal collection ever found, आज तक का सबसे ज़्यादा richest royal collection अगर हम माने, that was found from King Tut mummy and now it has become the part of Pharaoh's legend। और अब उसकी जो ओल्ड स्टोरीज है जिनके बारे में हम किंग टट के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, अब उन्हीं का ये एक पार्ट बन गया। एंड stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrections। Stunning, surprisingly देखिए, everything was covered by gold, हर चीज़ को गोल्ड से कवर किया गया था। their eternal brilliance meant, इतना सारा eternal मतलब जो कभी मरता नहीं है, brilliance जो शाइनिंग चीज़ है, गारंटी होती है, गिव एश्योरेंस, रिसरेक्शन, रीबर्थ। ऐसा माना जाता है कि शाइनिंग थिंग्स जो उसकी डेड बॉडी के साथ रखी गई थी वो उसके रिसरेक्शन मीन्स रीबर्थ में भी उस गारंटी देती थी कि भी वो उसके मरने के बाद वो चीज़ें उसे मिलेंगी। एंड इट के कॉज्ड अ सनसनी एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, और ये सनसनी फैला दी जब व्हेन ही वाज डिस्कवर्ड,
एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन। और यही गोल्ड आज तक सभी का अपनी तरफ ध्यान अट्रैक्ट कर रहा है। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स। बट टट की बॉडी को अभी भी डेली यूज की थिंग्स के साथ दफनाया गया था। वट ही वांट इन आफ्टर लाइफ, जो उसके मृत्यु के बाद उसे चाहिए थी। बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, लाइन अंडरगाउंड्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, इन सभी चीज़ों के साथ उस किंग टट की बॉडी को दफनाया गया था। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द funeral treasures, Carter began investigating his three nested coffins. Continuously, after some months, when Carter has recorded the France funeral treasure, now he started to investigate his three nested coffin. Here, nested means boxes in which dead bodies are kept. Nested means fitted inside each others. यहाँ पर किंग टट की बॉडी को 3 नेस्टेड कोफिन्स के अंदर दफनाया हुआ था। अब कार्टर ने स्टार्ट कर दिया उसी को डिस्कवर करना, उसी के बारे में रिकॉर्ड बनाना। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड ए श्रोड adorned with garland of willows and olive leaves. जैसे ही when he opened the first coffin, he found a shroud adorned with garland of willows and olive leaves. उसके कॉफिन में विलो एंड ओलाइव लीव्स की गार्लैंड को देखता है। वाइल्ड सीलरी, लोटस पेंटल्स एंड कोर्न फ्लावर, द फेडेड एविडेंस ऑफ ए ब्यूरल इन मार्च और अप्रैल। और नाउ दिस हैव बीन फेडेड, सो इट हैज़ बीन कंसिडर्ड दैट ही वॉज बरीड इन मार्च और अप्रैल मंथ। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble. When he investigated all the 3 nested coffins, now he reached to the mummy and he faced problems. The ritual regions had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. Here, ritual means used at the ceremony point. Regions होता है sticky, substantial होता है। Hardened became hard. Cementing means hard like cement. When he started to investigate his mummy, he found that ritual regions had hardened. जो फ्यूनरल प्रोसेसन के ड्यूरिंग्स रेजिन्स होती है ना, जो एक लिक्विड टाइप में एक सब्सटेंस होता है, उसके साथ उसकी बॉडी को चिपकाया जाता है। जब उसकी बॉडी को चिपकाया गया तो वो रिचुअल रीजन्स उस टाइम पे सीमेंट की तरह हार्ड हो गया और उसकी टट की जो बॉटम ऑफ इस गोल्ड कॉफिन और जो सॉलिड गोल्ड कॉफिन था उसकी बॉटम से वो चिपक गया सीमेंट की तरह। नो अमाउंट ऑफ लेजिटमेट फोर्स कुड मूव देम। बाहर से जितना भी वो फोर्स लगा सकते थे उन्होंने फोर्स लगाया, बट उसको हटाने के लिए बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कार्टर रोट लेटर बट वॉज टू बी डन। कार्टर दोबारा अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं अब हमें क्या करना था। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हेमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। उन्होंने कहा दैट दे कुड हेल्प द सन बिकॉज द सन रेज दैट वुड वर्क लाइक ए हैमर एंड इट कुड बी रिमूव्ड ईजीली। So he decided to keep it in the far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the regions. और उस regions को अलग करने के लिए, लूज करने के लिए कार्टर ने उसकी बॉडी को सन रेज के में रख दिया। For several hours he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degree Fahrenheit. Now he set the mummy in the blazing sunshine at 140 degree Fahrenheit. To think about that, now he could be removed easily. Nothing buzzed, but no improvement was there. कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be sizzled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट। वो अपना साइंटिफिक तरीके से रिपोर्ट करते हुए कहते हैं द कॉन्सोलिडेट मटेरियल हैड टू बी सिजल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन। इससे पहले कि किंग टट की बॉडी को उससे रिमूव करना पॉसिबल होता, उन्होंने उसी पॉसिबिलिटी को बनाने के लिए
कंसोलिडेट मटेरियल, जिसके जो उस रिचुअल रीजन्स के साथ उस कंसोलिडेटेड मटेरियल मीन्स जो डिपॉजिट मटेरियल था, जो रिचुअल्स जिसके रीजन्स के साथ उसको दफनाया गया था, जो इतनी बुरी तरीके से चिपका हुआ था, जो रिमूव करना ही मुश्किल हो रहा था, उसको निकालने के लिए उसके लिम्स और जो ट्रंक जो मेन पार्ट ऑफ द बॉडी है उससे उसको अलग करने के लिए दे यूज़ सीजल. सीजल अवे रेफर्स मीन्स टू सेपरेट द बॉडी विद द हेल्प ऑफ सीजल. सीजल का हेल्प, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में छैनी कहते हैं, उसका यूज़ करके उसने उसकी बॉडी पार्ट्स को उस कंसोलिडेट मटेरियल से अलग किया. इन इज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटल चॉइस. वो अपने डिफेंस में कहता है कि अब मेरे पास कोई दूसरी चॉइस ही नहीं थी. इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, thieves most certainly would have circumvented. Here circumvented means cheated the guards and ripped it apart to remove the gold. वो अपने डिफेंस में कहते हैं कि भाई अगर वो मम्मी को उस सीजल का यूज़ करके अलग नहीं करते तो जो थीव्स हैं वो गार्ड्स को धोखा देकर जो किंग टट की बॉडी में जो सोना रखा हुआ था उसको वो रिमूव करके वहाँ से चुरा कर भाग गए होते. इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलस वेल्थी. वो बहुत ज़्यादा धनवान थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे. एंड दे थॉट और होप, वे सोचते थे और उन्हें एक होप भी था दैट दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम. अगर वो मर जाएंगे और मरने के बाद उनका सारा गोल्ड उनके साथ अगर दबा दिया जाएगा तो वो मरने के बाद उसमें उसकी हेल्प करेगा और उस रिचेस को अपने साथ वो ले जाएंगे. फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, प्रीसियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स एंड ceremonial apron, sandals, seats for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. Here the narrator says that